Good morning to all. Now we are discussing the topic of buoyancy and buoyancy force and fluid mechanics, civil third semester. Buoyancy force. Archimedes' principle can be states as a body immersed in a fluid is bound up by a force equal to the weight of the fluid displaced. जो आर्किमिडीज है उसने एक प्रिंसिपल दिया है. उस प्रिंसिपल में क्या कहता है कि बॉडी कितनी डूबेगी. ए बॉडी इमर्स्ड इन ए फ्लूइड इज बाउंड अप, जितनी नीचे इमर्स्ड होगी फ्लूइड के अंदर वो उतनी ही होगी जितना हम उस फ्लूइड के वेट को वहाँ से रिप्लेस करें. एंड फ्लोटिंग बॉडी डिस्प्लेस्ड इट्स ऑन वेट ऑफ लिक्विड इन विच इट्स फ्लोट्स. दिस मीन्स दैट बुoyancy's definition, when a body is immersed in a fluid either wholly or partially, it is bound or lifted up by a force which is equal to the weight of the fluid displaced by the body. ये आपका बुoyancy का डेफिनेशन है. एंड नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ बुoyancy. तो द पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स बुoyancy ऑन द बॉडी इज नोन एज सेंटर ऑफ द बॉडी. इट इज ऑलवेज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड. Consider the immersed or floating body as shown in figure. The total force on the body can be calculated by considering the body to consist of a large number of cylindrical or prismatic elements and calculating the sum of force on the top and bottom area of each element. Immersed body, consider a prismatic element. Let the sectional area dA. हमने यहाँ पर इमर्स्ड बॉडी कंसिडर की है फर्स्ट डायग्राम के अंदर. एंड वी आर कंसिडर द स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट ऑफ एरिया ए विल बी dA. फोर्स ऑन द टॉप dF1. टॉप का फोर्स जो है वो है dF1 एंड फोर्स ऑन द बेस अपर डायरेक्शन में जो फोर्स है वो है dF2. ठीक है. अब हम यहाँ पर इसकी बात करें तो एक बॉडी है फ्लोटिंग बॉडी. फ्लोटिंग मतलब जो तैर रही है ना. जो बॉडी फ्लोटिंग है, एक है हमारे पास इमर्स्ड बॉडी. जो सरफेस है वेट सरफेस है, लेवल है आपका वेट लेवल जो है यहाँ पर वो H1 है. H1 यहाँ पर लेवल है और H2 जो है इसका ये बॉटम से जो लेवल है वो हाइट जो है वो H2 होगी. ठीक है. इस तरह से अब हम इसकी बात करें तो जो फ्लोटिंग बॉडी होती है ना उसका तो हाइट एक ही होगा क्योंकि अपर सरफेस तो एटमॉस्फेयर में है, बाहर है, पानी के बाहर है, फ्लूइड के बाहर है. तो जो हाइट H1 होगी फ्लोटिंग बॉडी की वो क्या होगी H1 इक्वल टू 0 एंड देन H2 यहाँ शो किया हुआ है. स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी एंड फ्लोटिंग बॉडी. देयर आर 3 पॉसिबल सिचुएशंस फॉर द बॉडी व्हेन इमर्स्ड इन ए फ्लूइड. इफ द वेट ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द लिक्विड of equal volume, then the body will sink into the liquid. If the weight of the body equals the weight of equal volume of liquid, then the body will submerged and may stay at any location below the surface. If the weight of the body is less than the weight of the equal volume of body of liquid, then the body will be partially submerged and will float in the liquid. Comparison of densities cannot be used directly to determine whether the body will float
or sink unless the body is solid over the full volume like a lump of iron. However, the apparent density calculated by the ratio of weight to the total volume can be used to check whether a body will float or sink. If apparent density is higher than that of liquid, the body will be sink. If these are equal, the body will stay afloat at any location. If it is less, the body will float with part above the surface. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड एंड फ्लोटिंग बॉडी। कुछ कंडीशंस यहाँ पर दी हुई है, हमने डिस्कस की है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर स्टेबिलिटी ऑफ ए बॉडी। तो हम इसमें कंडीशन भी पढ़ सकते हैं कि टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज़ की हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज़: स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी, ए शिप और a boat should be overturned due to small disturbance but should be stable and return to its original position. Equilibrium of a body exists then when there is no resultant force or movement of the on the body. The body can stay 3 states equilibrium conditions. फर्स्ट है स्टेबल। स्टेबल के अंदर हम बात करें तो इसका आपको मैं समझा देता हूँ। वहन ए बॉडी इज गिवन स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय सम एक्सटर्नल फोर्स एंड देन इट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। ठीक है ना, वेट एंड अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट जो फोर्सेस होते हैं, वेट और अप थ्रस्ट मतलब अपर डायरेक्शन में जो लगने वाले फोर्स होते हैं, ये इंटरनल फोर्सेस हैं। सच एज इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और हम इसकी बात करें तो न्यूट्रल जो होता है, न्यूट्रल के अंदर क्या होता है कि इफ़ ए बॉडी वैन ए गिवन स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑक्यूपाई ए न्यू पोजिशन एंड रिमेन एट ए रेस्ट इन दिस न्यू पोजिशन इज सेड टू बी पॉजेज ए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या कह रहे हैं हम कि if the body does not return to its original position from the slightly displaced angular position and heels further away when given small angular displacement such an equilibrium। भैया इक्विलिब्रियम का तो आपको कंफर्म पता ही होगा कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। इसके बाद पहले तो आपको कहता हूँ कि ऑल द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम देन विल बी इक्वल टू जीरो, है ना। इक्विलिब्रियम कंडीशन में सभी फोर्सेस हमारे जीरो होते हैं, तो वो सिंपल होती है। बैलेंसिंग कंडीशन को ही हम मोटा बात करें तो इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। अब यहाँ पर फ्लूइड के अंदर स्टेबल इक्विलिब्रियम है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, बॉडी विल गो बैक इट्स ओरिजिनल पोजीशन प्रियर टू द डिस्टर्बेंस, है ना। बॉडी वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में डिस्टर्बेंस के बाद आ जाती है, तो वो स्टेबल हो कहते हैं उसको हम। और जो बॉडी वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आती है उसको हम अनस्टेबल कंडीशंस बोलते हैं। ठीक है, अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन टू फोर्सेस ऑफ equal magnitude and acting on the same line of action but in the opposite direction exist on a floating submerged body. There are the gravitational force on the body acting downward along the centroid of the body and buoyant force acting upward along the centroid of the displaced liquid, whether floating or submerged. Under the equilibrium condition, these two forces are equal and opposite and act along the same line.
when the position of the body is disturbed or rocked by the external forces. The position of the center of gravity of the body with respect to body remain at the same position, but the shape of the displaced volume of liquid changes, and so its center of gravity shifts to the new location. यहाँ पर हम बात करेंगे अब आगे जाके मेटा सेंटर की। मेटा सेंटर हाइट क्या होती है? तो नाउ दीज टू फोर्सेस कंस्टिट्यूट अ कपल विच मे करेक्ट द ओरिजिनल टिल्ट और एड टू द ओरिजिनल टिल्ट। इफ द couple opposes the movement, then the body will regain or go back to the original position. If the couple act to increase the tilt, then body become unstable. These conditions are illustrated in figure. फिगर में आपको कुछ कंडीशंस दे रखी है, जैसे कि पहली कंडीशन है इक्विलिब्रियम कंडीशन, buoyancy और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर इन अ सेम लाइन, तो वो क्या रहेगा, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे हो जाएगा, है ना, सबमर्ज्ड बॉडी, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या होगी, हमारे पास इक्विलिब्रियम के अलावा टिल्ट हो जाएगा कभी जब उसकी कंडीशन क्या होगी कि आपके पास जो बियॉन्ड फोर्स एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर not a forces are passes through a not a single axis, ठीक है, तो वो उस कंडीशन को हम बोलेंगे अनस्टेबल कंडीशन, ठीक है। एंड न्यूट्रल पोजीशन में बोथ आर प्लेस्ड एट ए सेम पॉइंट, ठीक है। शो द बॉडीज अंडर द कंडीशंस, पॉइंट सी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पॉइंट बी इज द सेंटर ऑफ buoyancy. It can be seen that gravity and buoyant force are equal and act along the same line but in opposite direction. ये आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन की अभी जो मैंने समझाया है वही बात इसमें लिखी हुई है। शो द बॉडी अंडर द न्यूट्रल पोजीशन, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द सेंटर ऑफ buoyancy आर कोइंसाइड, ठीक है, थर्ड में दोनों एक दूसरे के कोइंसाइड हो रखे हैं, तो ये न्यूट्रल पोजीशन है, अनस्टेबल इसकी स्टेबल की अपोजिट हो ही जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी बात करें आगे, एक मेटा सेंटर का पॉइंट और आता है यहाँ पर कि व्हाट इज द मेटा सेंटर। तो हम इसकी बात करें तो शो द बॉडी फ्लोटिंग इन ए लिक्विड एन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, व्हेन इट इज़ गिवन a small angular displacement, it start oscillating about some point. This point about which the body starts oscillating is called meta center. Is called meta center. So meta center may also be defined as the point of interaction of the axis of the body passes through center of gravity and original center of buoyancy, and vertical line passing through the center of buoyancy of the tilt position of the body, ठीक है। The position of the meta center M remain position of the meta center remain constant for small angle of tilt theta। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मेटा सेंटर हाइट से हमको ये कैसे पता लग रहा है कि स्टेबल अनस्टेबल और कौन सा इक्विलिब्रियम यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो हम बात करें इसकी, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी एंड मेटा सेंटर GM, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटा सेंटर, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारा मेटा सेंट्रिक हाइट कहलाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम की हम बात करें, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम की यदि हम बात करें तो इसमें क्या होगा कि पोजीशन ऑफ मेटा सेंटर M रिमेन हायर
देन द सेंटर ऑफ बॉडी जी। तो ये बाउंसी फोर्स हायर है, ऊपर की तरफ लग रहा है इसमें, और अनस्टेबल में क्या है, पोजीशन ऑफ मेटा सेंटर रिमेन लोअर देन जी। ये जी की वैल्यू यहाँ आ गई आपके पास, जी से लोअर आ गई बाउंसी की वैल्यू। तो मेटा सेंटर जो आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, अपर साइड में, ठीक है, ये हो गई इस तरह से। और न्यूट्रल पोजीशन जो होती है वो तो आपको पता ही है कि कोइंसाइड हो रखी है, दोनों कोइंसाइड होते हैं, न्यूट्रल पोजीशन में दोनों कोइंसाइड होते हैं। अब डिटर्मिनेशन ऑफ मेटासेंट्रिक हाइट का डिटर्मिनेशन है वो क्या होगा यहाँ पर, कैसे हम इसको कर सकते हैं, इसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए टाइम, थैंक यू।